اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو میں نے ڈسکس کرنا تھا، وہ پچھلے ویک ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہیں کوئی بیٹھے بٹھائے بد ہضمی ہوئی، کسی جگہ وہ تقریر کر رہے تھے اور ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے بھائی جو چھوٹے ہیں انس رضوی صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ظاہر آپ کو پتا ہے ان کا تو دھندا سارا اینٹی قادیانی کام کے اوپر چل رہا ہے، ختم نبوت پہ تو بیچارے کام کر نہیں سکتے، تو اینٹی قادیانی کام کرتے ہوئے جب بھی ان کے چندے کمزور پڑ جائیں تو مجھے خام خواہ بیچ میں گھسیٹتے ہیں۔ وہ ویڈیو پیچھے سے کسی نے بنائی اور اسے اپلوڈ بھی کر دیا، ان کے آفیشیل جو اسٹوڈنٹس پیجز چلا رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی باقاعدہ تھم نیل لگا کے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ انجینئر مرزا اور غلام محمد قادیانی کا باپ ایک ہے۔ یہ تو میں دسنا کہ پیو کی دا ایک ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ اچھا، اور اس پہ لکھا ہوا کہ انجینئر کی چترول تو ان کی اور ان کے مرے ہوئے بابوں کی ہو رہی ہے میرے ہاتھوں، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے 2-3 جملے بولے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے جملوں کی انجینئرنگ کروں گا۔ ویسے تو چھوٹے موٹے کافی لوگ اس وقت مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے، ہمارے لیے کوئی اہمیت کی حامل وہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان ساری باتوں کے جوابات آلریڈی ریکارڈ کروائے ہیں۔ آج بھی میں جو کچھ بولوں گا یہ میں نے آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب ایک بڑا بندہ پھر سے میدان میں اترا ہے، کچھ عرصے بعد ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک انہیں دوائی نہ دی جائے انہیں آرام نہیں آتا۔ دیکھیں، آج سے 1.5 سال پہلے سعد رضوی کو بیٹھے بٹھائے ایک تکلیف ہوئی، ان کا اپنا ایک بریلوی مولوی رافضی ہو گیا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلمات بولے۔ وہ چونکہ ایک دفعہ مجھے بھی مل کے گیا ہوا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی کو میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو میں نے اس وقت 1.5 سال پہلے اس کی طبیعت صاف کی تھی، میں نے کہا کہ تم بات کر رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمہارے اندر تو یہ جرت نہیں کہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ آیا ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، وہ تم اپنی عوام کو سنا سکو، بالکل جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے۔ اور میری کرامت آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، آج 1.5 سال ہو گیا ہے کہ وہ جو چیختا پھر رہا تھا ٹی ایل پی کا امیر سعد رضوی کہ انجینئر نے جو ہے گستاخی کر دی حضرت ابوبکر کی، وہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی بیان نہیں کر سکا۔ ان کی حضرت ابوبکر کے ساتھ ٹوٹل عقیدت یہ ہے۔ ویسے ان کے جو ابا جی تھے وہ بھی جیلم سے ہی مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملتا ہے، حالانکہ وہ بھی بالکل فراڈ ہے، ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بایزید بستامی امام جعفر کے مرید ہیں اس سلسلہ نقشبندیہ میں، اور امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد بایزید بستامی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آپس میں انہوں نے مرید کہاں سے ہونا تھا؟ اسی طریقے سے بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کی جو بیعت ہے وہاں پہ بھی 40 سے 50 سال کا فرق ہے ایک دوسرے کی زندگی اور موت کے اعتبار سے، وہ تو ہے ہی فراڈ۔ چلو نام نہاد جو سیدنا ابوبکر کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت کی تھی، تو ابوبکر کے ماننے والے تو وہ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے عقیدے پہ ہوں گے، صرف زبانی کلامی تو نہیں۔ تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتا، یہ نہیں کہ بھی تجھے کوئی عربی نہیں پڑھنی آتی یا اردو ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، مراد یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی تمہارے عقیدوں کے خلاف ہے۔ تم نے تو حضرت ابوبکر کے اوپر 295C لگوا دینی تھی، کیونکہ تم تو اس قسم کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی، سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کا کفن مبارک ہٹایا، آپ کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے۔ کیونکہ باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر کے، جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے، نبی الاسلام بھی واپس ایک نہ ایک دن آ جائیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے رومنز اور پرشینز کو شکست دیں گے۔ لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہیں پتا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ جو فتوحات ہیں یہ خلفاء راشدین کے دور میں ہونی ہے، حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہونی، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ نبی کو جتنا بتایا جائے بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر اتنی سمجھدار شخصیت، ان کو بھی غلطی لگی، تو وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر ان کا جواب دے رہے تھے کہ بھئی 2 بار حضور کو موت نہیں آنی، بس یہ ایک دفعہ موت آئی، اب آخرت کی زندگی، اب دوبارہ نبی السلام نے دنیا میں واپس نہیں آنا اور نہ دوبارہ موت آنی ہے۔ پھر باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ تو میرے بھائی سعد رضوی صاحب ابھی بھی بیان نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی بیان کریں اور اس کا ترجمہ ذرا عوام الناس کو بتا دیں اور اس کی ذرا تشریح بھی کریں۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے۔ فان محمدا قد مات،
विसाल शरीफ फरमा गए, वफात शरीफ फरमा गए, नहीं, मर गए। वमन कान यअबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो बेशक अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये हजरत अबू बकर का अकीदा है। मुझे बताइए किस बरेलवी का अकीदा है और किस बरेलवियों के मौलवी का अकीदा है? इसमें तो सराहतन गुस्ताखी है इनके नजरिए के तहत, क्योंकि इसमें सबसे पहली तो बात यह कि यह दावा ही झूठा है कि सहाबा किराम हुजूर की इबादत करते थे। हजरत अबू बकर ने कहा ना, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर गए और अल्लाह को मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो सहाबा में तो कोई इबादत नहीं करता था। ये तो फर्जी जुमले बोलने को गुस्ताखी शुमार करते हैं। हजरत अबू बकर ने तो फर्जी जुमला बोला जो अकीदा है ही नहीं था, इवन आज भी नहीं है कि कोई रसूलुल्लाह की इबादत करता हो। लेकिन हजरत अबू बकर को पता था कि बस मैंने इस वक्त अगर इस्तकामत दिखाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ईसा इब्न मरियम बनने से मैं रोक लूंगा, क्योंकि उन्होंने हुजूर से सुन रखा था। सही बुखारी में ये हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। यह रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि उनकी मैयत के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि तौहीद बयान कर रहे हैं। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, आगाह हो जाओ, तुम में जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फर्जी जुमला बोल दिया। कहते हैं इंजीनियर साहब कि तू जुमले बोल देने जितू हजरत अबू बकर बोल दे। सर जाहिर है कोई भी समझदार बंदा बात समझाने के लिए उस लेवल पे उतरेगा जिस लेवल पे उतरना उस दौर की रिक्वायरमेंट होगी। आज तुम कहोगे ना कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुद्र रोका हुआ है, तो आज हम ये कहेंगे कि कोई बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, समुद्र रोकना तो बड़ी दूर की बात है। ये कहां लिखा हुआ है? जहां हजरत अबू बकर की बात लिखी हुई है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर चुके। किसी आयत हदीस में ये नहीं लिखा हुआ था, ये उनकी जाती इंटरप्रिटेशन थी और बिल्कुल दुरुस्त थी। बाद में उन्होंने एक आयत पेश की, उसके बाद एक और आयत पेश की, लेकिन उसमें भी ये अल्फाज नहीं थे, उसमें सिर्फ रसूलुल्लाह की मौत की खबर थी। पहली आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? ग़ज़वा उहद के मौका पर जब हुजूर की शहादत की अफवाह फैल गई तो ये आयत नाज़िल हुई। पाकिस्तान में हम तर्जुमा करते हैं कि मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये शहीद हो जाए या फौत हो जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे, बल्कि विसाल शरीफ फरमा जाए। लेकिन कुरान ने ये नहीं, सीधी सीधी बात हुई है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता, अगर ये मर जाए औ क़ुतिला या कत्ल हो जाए। फिर एक और आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक ए नबी तुम्हें भी मौत आनी है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मौत आनी है। यानी आयात बाद में पढ़ी है, अपना जुमला पहले बयान किया है। हम तो देखें कितनी इत्तेयात करते हैं, हम पहले कुरान की आयत बयान करते हैं, फिर हदीस बयान करते हैं, उसके बाद अपने जुमले बोलते हैं। हज़रत बकर ने कुरान हदीस बाद में बयान किया है, पहले सीधा जुमला बोला है, अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। तो मैंने ये साद रिजवी को कहा था कि तुझे बड़ा शौक पड़ा हुआ ना, तू आशिक़े अबू बकर बना हुआ है, अबू बकर से तुम लोगों का क्या लेना देना? तुम लोग बाबों के दीन के मानने वाले हो, अबू बकर का दीन तो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। तो तू ये खुतबा जो है ना तर्जुमे के साथ ना अपनी आवाम को बता और इसकी तशरीह कर कि ये हज़रत अबू बकर ने जुमला क्यों बोला है, कौन सहाबा में हुजूर की इबादत करता था जिन्हें हुजूर समझा रहे थे या तुम्हें समझा रहे थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुमने इस किस्म का कोई अकीदा रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करना। क्यों फर्जी जुमला बोला? क्या निकाला उसमें से? निकाला है कि बाद फिर बीच इंजीनियर पे आ जाए, फिर इन्हू फड़े थे, फिर चुक चुक के ना सारे ऊपर सुटे। ज़ाहिर है हमें तो एक दलील चाहिए ना कि आप फर्जी जुमले बोल सकते हैं। कुरान और सुन्नत को एस्टैब्लिश करने के लिए जब जब जरूरत पड़े, जिस जिस हथियार की जरूरत पड़े चला दें। तो अल्लाह का शुक्र है ये वीडियो मेरी जनवरी 2023 में रिकॉर्ड हुई थी, ये जून 2024 आ गया, 1.5 साल हो गया साद रिजवी को आराम है। उसके बाद इसने कभी गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया, और उसको तो पता भी नहीं होगा ये उसके छोटू ने क्या काम दिखाया। वैसे उम्र में तो उनसे बड़े हैं ये, लेकिन नायब अमीर है। इसने बैठे बैठाए जड़े अपने आप को मशीन पे चढ़ा लिया। तनु ने क्या कि तू ऐसा नहीं हरकत कर, और लोगों के ईमान के साथ खेलते हैं ये लोग। देखें किस तरीके से ये गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, पब्लिकली क्या जुमले बोल रहा है। सारी कायनात की बादशाही भी मिल जाए तो हम में से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बड़े सगीर के अंदर मिलते ਨੂੰ पैदा कर लिया, दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्होंने पैदा किया गया। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जिस तरह होर मिर्ज़े जेल भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान के उलमा को कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आसी मुनादा करनी तैयार,
लेकिन वो मुनाजरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने ताफत करना है लोग उन्होंने हर तरह की सहूलत दे रहे हैं उन्होंने ताफत फराम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि हम अपने आका के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। ये वो लोग जुमले बोल रहे हैं जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह कलमे पढ़वाए हुए हैं। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई हैं और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई हैं। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर। बेवफाई तो कर चुके, मुनाजरे कर चुके। 2009 में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं शिबली को रसूल बनाने वालों ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात तो होती है अल्लाह ताला के बारे में, जो तसव्वुफ में एक ढोंग है। रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो हनीफ कुरैशी कह रहे हैं नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, और वो साथ बैठा हुआ सुभानअल्लाह पढ़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस तो इन्हें हॉन्ट करती है। किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं? असल में जब इन तक हमारी दावत की हिट पहुंची है तो अब इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा सिवाय ये कि ये किताबें बदल गई हैं। इंजीनियर साहब जो है वो खामखा इस मसले को उठा रहे हैं और आए दिन मुख्तलिफ लोगों को ये लॉन्च करते रहते हैं इस हवाले से कि हमारे बुजुर्गों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई इल्जाम तो तुम लोगों ने खुद लगाया है, तुम लोगों ने दिफा किया। इल्जाम कहां से है? बिल्कुल रियलिटी है। हमें कोई बात मजबूर नहीं करती कि खामखा हम ऐसे लोगों का दिफा करें कि जिनकी तरफ इतनी खतरनाक चीजें मंसूब है। 500 साल बाद गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों ने भी कहना है कि हमारे बुजुर्ग की तरफ गलत बात मंसूब हो गई है। इंजीनियर साहब आप झूठा इल्जाम ना लगाएं उनके ऊपर। छोड़ो यार, ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने। तो बेवफाई तो भाई तुम कर चुके हो। तुमने किताबें छापी हैं, इनकी हराम की कमाइयां खाई हैं। आज हमारी जब हीट पहुंची है तो तुम्हें हाथ पांव पड़ गए। बेवफाई तुमने की हुई है। फिर उन्होंने जुमला बोला कि अंग्रेजों ने गुलाम अहमद कादियानी को लॉन्च किया था और उसकी हिफाजत की। वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ जो है अंग्रेजों ने प्रोवाइड किया था। सरकार गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी सूफी था। अंग्रेज कोई उसे वहां मलका बरतानिया से तो नहीं लेके आए थे, यहीं पैदा हुआ। हनफी था, सुन्नी था, मुनाजरे लड़ता था क्रिश्चियंस के साथ। बाद में उसका दिमाग खराब हुआ। उसकी किताबें पढ़ के देखें। और तुम लोगों ने ये दो नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी रफुल हिदैन के साथ। ओए गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल हिदैन के तो वो नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका आया उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। जो पूरी कायनात को राई के दाने की तरह हथेली पे देख रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता चला कि बुत रख के आते थे और रफुल हिदैन होता था। ज़ाहिर है तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं। और जिस बुजुर्ग को नमाज का तरीका नहीं पूरी जिंदगी पता चला, उसने क्या दिल का हाल जानना है? और अगर वो नमाज का तरीका ठीक था फिर तो आड़ा फारग हो गया। तो अपने बुजुर्गों को देख लो। हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारी तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी रफुल हिदैन ना भी करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है हमने उनको तो फॉलो नहीं करना, वो तो 500 साल बाद आए यार। हमने तो फॉलो करना है जो कुरान और सुन्नत में लिखा है। लेकिन ये इनके लिए दलील जरूर है जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा बुजुर्ग क्लेम किया हुआ है। तो कादियानी तो बगैर रफुल हिदैन के नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये चेन जोड़ी के जी उस वक्त अंग्रेजों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, और अब जो है ना वो इंजीनियर साहब को
آج کل تحفظ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے دیا ہوا ہے. تحفظ تو تمہیں ملا ہوا ہے. تم اور تمہارے ابے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے تمہارا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کس نے تحفظ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو. میں تو سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ساروں کو چندے دیتا ہوں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تم تو اتنا خطرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تمہیں کس نے تحفظ دیا؟ یہ تو میں اپنے اداروں سے, آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا. آج میرا ذکر کر رہا ہوں, باقی سب کا بھول گئے ذکر. تمہارے ابے نے تو سب کو کافر قرار دیا ہوا ہے. احمد بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے نا, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ پینگیں تو تمہارے بڑے کی تھیں کہ وہ ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتا تھا اور اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے ذبیحے کو حرام سمجھتا تھا. تم بتاؤ کہ تمہارے فرقے کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے؟ پھر اسی اعلی حضرت سے ان کے پوچھا گیا کہ بتائیں وہابی جو ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے, نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, کفار کی مسجدوں میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ کفار لفظ لکھا ہے اعلی حضرت نے, اور ان کے بیٹے نے یہ جمع کیے ہیں. اور یہ ملفوظات کا وہ حصہ ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے نے خود منسوخ کر دیا. کفار کی مساجد, حالانکہ یہ بھی اس نے بلنڈر کیا, کفار کی تو مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہے, بیت الحمد وہ لکھتے ہیں. آج بریلویوں کی حکومت آنے دے, دیوبندیوں کو بھی بیت الحمد لکھنا پڑے گا. بالکل اسلامی نظام سب تو پہلے تو بڑھن گے اسلامی نظام والے ہو. پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اذان ان کی نماز کی طرح اذان بھی باطل ہے, صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لینا ہے, ادروائز کوئی ان کی اذان کوئی نہیں ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کے فتوے ہیں. مجھے بتائیں جن کا ابا سارے فرقوں کو کافر کہے, ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی؟ میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی. پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابے کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا, ساروں کو کاٹتا رہتا تھا؟ اور تمہارے ابے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خادم رضوی, اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہے تھے نا کہ چھڑ دو وہابیاں دی اذان دا کہ احترام اے تے سورہ سور نے کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے, بھلا ہو اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی, تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے بادشاہی مسجد, وہ وہابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, اہل حدیث کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا, دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو جن جن کو شوق ہے نا کہ یہ اس قسم کی میرے بارے میں کوئی ورڈک دیں, تو وہ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ تم لوگوں کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور باہر نکل آتے ہو, میرے بارے میں بھوگنا شروع کر دیتے ہو. بھائی تمہارے ابے نے جنہیں کافر قرار دیا تھا نا, جاؤ نا ان کے بارے میں بولو نا, منہ توڑے تمہارا, کیونکہ آج وہ پاور بن چکے ہیں. یہ بولے ذرا دیوبندیوں کے بارے میں, سعد رضوی بول کے بتائے, اس کا قیمہ نہ نکال دیں. وہ ایک گھر سے نہیں نکل سکتا, صرف میں سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے بنا ہوں. حالانکہ میرے اوپر اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, اعلی حضرت کا فتویٰ دیوبندیوں کے اوپر, اہل حدیث کے اوپر, شیعہ کے اوپر ہے. اور غداروں اپنے ابے کے فتوے کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہو اور ان کا نام ہی نہیں لے رہے. 100 سال انہوں نے تھانوی رسول اللہ رٹ لگائی ہوئی تھی. جب سے میں اتروں میدان عمل میں, آپ نے کسی بریلوی کے منہ سے تھانوی رسول اللہ سنا ہے؟ اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی. کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, میرے پیچھے پڑھ کے. کیوں؟ میں نے ان کا ہتھیار لیا ان سے, مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ پلوان کا زور جو ہے وہ حاصل کر لیا اور ان کو گرا لیا. اگر یہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کرے. دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں, جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں نا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں, کتنا ایماندار ہوں. دیکھیں پینل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں, لیکن ان کی بےایمانی دیکھیں, یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیا میں.
تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندوں، غلط بندے سے تم نے ہاتھ پنجہ آزمائی کی ہے. جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے، اوپر والے باپوں کو، اور نہیں چھوڑنا. تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں. خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی. آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے. نعوذ باللہ. مڑو کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف الماجوب جی. اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہاں جی. اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المجوب، میں نے وہی کشف المجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں. اور وہ خاتم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھاڑ دو، انہوں نے ہاتھ پاؤ. توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا. پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے. ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک، کیوں کہندے ہو لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کبھی ہے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھ دینا. یہ جو جملے ہیں نا لبیک کا حصہ ہے جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجمیری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو. تو اس نے بس یہ کلپ بنایا اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا. ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے. جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ. اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے. لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے. تو وہ تو جواب نہیں دے سکا. چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے. تو جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ. اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے. اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی یہ کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر بیر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک. ہاں جی، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے. چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی پیر میل شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا. اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. اوے چیک کرو مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل ریولٹ ہو چکے ہوئے. ہاں مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بغول تمہارے اس وقت پیر میل صاحب گئے تھے نا، تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں، یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا، تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر. کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے
अहमद बरेलवी साहब की, उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है, जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेहर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल यह है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। पीर मेहर अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डाशी में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, और कोई नहीं बदल गई है, सब दिफा करते संजय, और डर गए मेरे तो, और नस गए जो है। 100 साल नहीं हुए पीर मेहर अली साहब को फौत हुए हुए, क्यों लिख के गए? वो दिफा करके गए मार्फत की बात। आप मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलाम कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें क्या मुनाजरा लड़ना है? उन्होंने कहना मामा पहले अपने कहा दी खबर लै। हाँ तो सो क्या मुनाजरा लड़ना है इन्होंने? इको कुछ गले लग के रो, एक बड़ा भरा एक निका भरा। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसका जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवामुन नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़े, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अभी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके के मेरे साथ, उन्होंने अनीफ कुरैशी से पूछा कि आप तो कहने किताबें बदल गई हैं, 2009 में तो आप खुद दिफा कर रहे थे। जवाब ही नहीं दिया उसने, गोल कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हैं। इनको चाहिए था फौरन कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ करे, हमसे गलती हुई है, इंसान है, गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये गलती मान लेना कि गलती हुई है, फिर तो इंजीनियर साहब का मुकदमा साबित हो गया। देवबंदियों को अंदर से पता है कि अहमद बरेलवी ने गुस्ताखाना इबारतों पे हम पे सही गिरफ्त की है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमने हुसामुल अरमैन को ठीक मान लिया तो हमारे तो सारे बुजुर्ग फारिग हो गए। इस वजह से उन्हें तौबा की तौफीक आज तक नहीं हो रही। अल मुहन्नद लिख के उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। सेम वही काम बरेलवी भी कर रहे हैं। बरेलवी कहते हैं यार समझ नहीं आती गुस्ताखियां दिफा क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता लगा क्यों कर रहे हैं, तो भी तो तौफीक कोई नहीं हो रही तौबा करने दी। ये काम ही बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा आसान है कि ये गुस्ताखियों के ऊपर क्यों अभी तक अड़े में, आप भी अड़े में, उल्टा आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई बात कस देते हैं। तो मैंने सीधा आपके बड़ों के ऊपर हाथ डालना है, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि इंजीनियर साहब डायरेक्ट बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों के मानने वालों का यह अकीदा है कि ये उनकी किताबें हैं और नहीं बदली हुई, वो दिफा करते रहे। रहा हमारा मामला, हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है, और अल्लाह ताला हमें इस हुस्न ज़न रखने पर माफ करे कि हम गलती ना रख रहे हो कि उन्होंने ये नहीं कहलवाया होगा। लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कहने कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं की बात मानी जाएगी ना, जो उनकी औलादे हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हो, तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे होकर बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सबके सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सबके सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हाँ, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया, छड़ दो 90 लाख को कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं होते कीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बाबा ने भी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छा जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे कलमा पढ़ाया उसकी बुजुर्गी मान लीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बरेलियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है, तू है गुलाम का दियानी दजाल दी औलादो,
ਨੂਰਾ ਕੁਛ नहीं करते रहे हो तो है तुसी पीर मेरे लिए भी थे वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़े को बाबा छड़ना ना कोई जिंदा ना मुर्दा पोड़ के रख छड़ना है सारे जिसने नबी के साथ गदारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख कलमा पढ़ाया मनो वे डॉक्टर जाकिर नायक सुल्तानुल हिंद उन्होंने मनो सुल्तानुल हिंद मनो मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड मेरा नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं ला लो दबो इन्होंने बाबिया अपने बेशर्मी की इंतहा। हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला और नस्ल तो है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो दज्जालां दे मजार बनाए थे बिल्कुल क्लियर कट जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं गल करो 90 लाख दी जी इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी थोड़े मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत ही गाला कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है केड़े पासे जाइए तुसी तो मनाज़रे लड़े हुए हैं और वीडियोस मौजूद है मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ साहबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है हमने क्यों करना है। मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा तूने क्यों उसने जान रखा तो मैं किधर जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन साहबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में उनकी बुजुर्गी मुसलमा है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमान नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की धौंसे में लगा सकते थे वो भी खत्म होगी। देखो मैं कैसा पढ़े इन्होंने वो बाबा जी खातम रिजवी साहब इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है फिर मर जाए सारी पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई थी मैं फराड पे करता थोड़े नाल अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्होंने पूछो तेरे गौस कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। बताएं ईमानदारी से क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं वो गौस किधर मर गया जी ड्यूटी है यूट्यूब की आर्टिस्ट कुत्ते और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या है बाबा सिर्फ उम्मत ना मर जाए सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन बल्कि कहना चाहिए कुत्ते की मौत मरन क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी अवाम को तो इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने का। पहले तो वो कुत्ते की मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे उम्मत क्यों मरे तुसी ना मर जाओ पहले थोड़े बड़े ना मरन फ्राड मचा के रखे आज जरूरत पई है सारे बुजुर्ग मर गए ने। अच्छा ये बातें करें और काबे भी गारंटी की नसे तुम काबे गारंटी की काबे वाले की कोई गारंटी नहीं है। काबे वाले ने कहा है दुनिया बकदर एफर्ट है। तुम अपने बुजुर्गों को खुदा के मुकाबले पे लेके आते हो। खुदा तो लेके भी आजमाता है दे के भी आजमाता है। तुम अपने बाबों के बारे में भी यकीन रखते हो कि अल्लाह ताला तकलीफ दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। इसका मतलब है तुमने मिनी गॉड बनाया हुआ उन्हें। वो एक साल ही अल्लाह ने अबरा का लश्कर तबाह किया उसे यादगार बनाना था बस। उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं करना। दुनिया बकदर एफर्ट है। लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया का निजाम चलाते हैं लिहाजा अगर किसी मजार के ऊपर हिरवन चर्च बिकेगी बदकारी का अड्डा होगा तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा बाबा किधर है। हाँ किसी मजार पे अगर बम ठुकेगा तो हम पूछेंगे कि बाबे ने डाइव मार के क्यों नहीं बम कैच किया। 1965 में तो वो रावी के पुल पे आके डाइव मार के कैच किया करता था। आज वो अपने जो हाथ में पकड़ाया हुआ जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह जो है वो मिसफील्ड कर रहा है। ये पूछेंगे कि तुमने हमें पढ़ाया था ना। और जाए वो इंडिया वालों ने अपना म्यूजियम बनाया है वहां उनकी जो देवियों ने पकड़े हुए ना बम उन्होंने बम रखे भी हुए हैं। लो जी पाकिस्तानी आज तक वो बम नहीं दिखा सके जेडे फड़े सन बाबा जी ने उन्होंने वो फाड़ के रखे भी हुए हैं म्यूजियम में वीडियोस है बकायदा। उधर भी सब हिफाजत हो रही है सब कहानियां बनी हुई है। मीडिया ने कुछ नहीं छोड़ा इनका
अब इनके पास चीखो पुकार है और वो अपने सारे बुजुर्गों की करामतें चूंकि अब फैले हो गई हैं, उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं और आए दिन मेरे बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं तो यकीन माने जो भी इस तरीके से बंदा बड़ा अगर निकलेगा, वैसे तो मैं छोटों के ऊपर तो रोजाना बोल सकता हूं, लेकिन मैं उनको हमेशा इग्नोर करता हूं, लेकिन ये एक बड़ा बंदा निकल के इस किस्म की बातें मेरे बारे में करे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सारे मौलवियों को मैंने ये 5 हवाले दिए हुए 2 सालों से दे रहा हूं। वैसे तो देते हुए मुझे 12-13 साल हो गए, लेकिन जब से मुझे तुम लोगों ने छेड़ना शुरू किया, एक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला हवाला दिया, इसके बाद मैंने कशफुल माजूब से हवाला दिया था कि नबी इस्लाम के ऊपर झूठा स्कैंडल बांधा के उन्होंने अपने एक सहाबी की बीवी के ऊपर नजर पड़ी और उससे बाद में शादी कर ली, ज़ियाद इब्न हारिसा, साहब और शुक्र के चैप्टर में। ठीक है, इसका जवाब हमें चाहिए कि नबी इस्लाम के बारे में ऐसा अकीदा रखने वाला बंदा, ऐसे अकीदे को छापने वाला, इसकी कमाई खाने वाला, उसका शरीय हुक्म बयान करें क्या। 2 वाले हो गए। तीसरा वाला मैंने दिया था तज़किरतुल औलिया में, इनके बाबा जी फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा कि बाजीद बुस्तामी कहते थे लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। जी हाँ, ये जरा हवाला ले जाओ और ये बताओ कि इसकी कमाइयां खाने वाले कौन है और उनके ऊपर शरई हुक्म क्या है, जिन्होंने नबी इस्लाम की इस्मत और इफ़्फ़त के ऊपर ये डाका मारा। उसके बाद फिर मैंने हवाला दिया था तज़किरतुल औलिया से कि बाजीद बुस्तामी कहते थे मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं, उसने कहा मैं जिले मोहम्मद हूं, और वो भी इतने ढके छुपे अल्फाज में उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि भाई मैं नबी इस्लाम की लेगेसी आगे लेके चलूं। सिर्फ गलती उससे ये हुई है कि उसने नबी का लफ्ज बोल दिया, बाकी बड़े एहतराम के साथ उसने काम डालने की कोशिश की है कि हुजूर का मिशन आगे लेके चल रहा हूं। जिले मोहम्मद का मतलब ये नहीं है आखिरी नबी हुजूर ही है, मैं उम्मती नबी की हैसियत से उनका मिशन आगे लेके चलूं। लेकिन इधर ये डायरेक्ट कह रहे हैं मैं मोहम्मद हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं ईसा हूं, मैं मूसा हूं, मैं अर्श हूं, मैं कुर्सी हूं, और एंड पे उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह भी मैं। हाँ, ये तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है और ये दिफा करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो अभी ताजा दिफा किया है। हाँ, उसने कहा वीडियो में, उसने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि ये वादतुल वजूद का अकीदा है जिसके तहत बाजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। अब इस जाहिल से कोई पूछे कि भाई क़यामत के दिन तो अल्लाह का झंडा तो रसूलुल्लाह के हाथ में होगा, ये बायज़ीद के हाथ में कौन सा अल्लाह का झंडा होगा? दूसरा झंडा जो है वो तो खाइन का है, बुखारी में है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा। ताकि वो तुम्हारे बाबे को वाले गद्दार वाले झंडे थे नहीं किधरे, अब वो भी अल्लाह ने मुकर्रर किया होगा, वो ताकि मैदान माशर पता चले कि ये खाइन शख्स था। हर खाइन शख्स के ऊपर एक झंडा लगाया जाएगा। और 5वां वाला मैंने दिया था जो कश्फ मजूब में भी और तज़किरतुल औलिया में भी इमाम हनीफा की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो हुजूर की कब्र में उतर के ख्वाब में उन्होंने देखा कि हुजूर की हड्डियां समेट रहे हैं। ये शैतानी ख्वाब को रहमानी ख्वाब बना के पेश किया, एक गुस्ताखाना ख्वाब को। और इसकी मैंने पूरी इंजीनियरिंग की है। जो ये जवाब देते हैं ना इन बातों के, मैंने एक एक चीज का जवाब दिया हुआ है। लेकिन मुझे बड़ा फायदा होता है जब ये जवाब देते हैं तो कम से कम ये मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, तभी बंदा जवाब देता है ना, तो जवाब देने का बड़ा फायदा हो जाता है। अब इनके पास आखिरी जवाब यह है कि किताबें बदल गई हैं। किताबें अगर बदल गई हैं तो जिन लोगों ने किताबें आज तक प्रिंट की, इनकी कमाइयां खाई और इसके हक में मुनाजरे लड़े, उनके ऊपर शरई हुक्म मुझे चाहिए। कहां से देंगे? वो तो सारे बीच में आ जाएंगे बड़े, अहमद रेलवी साहब भी आ जाएंगे, पीर मेरल शाह साहब भी आ जाएंगे और इनके चाचू भी आ जाएंगे, वो थानवी साहब, और थानवी पार्टी के दो ताए बीच में आ जाएंगे, ये पीर मेरल शाह साहब भी और अहमद रेलवी साहब भी। अब तो सारे ये एक हुए हैं ना, जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस मुसलमानों के मुकाबले पे एक हो गए थे। ये दो हनफी बरेलवी हनफी देवबंदी इकट्ठे हुए थे, तो गम एक जैसा हो गया ना यार। वो बरेलवी जो गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखते थे देवबंदियों को, मैं अगले दिन एक बरेलवी मौलवी की वीडियो देख रहा, उसने कहा मेरा काम सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करना है, रहा थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला तो ये उलमा देवबंद खुद जवाब देंगे। ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा है, उसने कहा इसका जवाब वो देंगे। पहले ये लोग गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखे, इनको क्या पता था कि हमारे घर भी खुरा निकल आएगा? इन्हें पता है सिर्फ थानवी रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ है, चिश्ती रसूलुल्लाह का तो इनको पता नहीं था। अब भी जुर्रत नहीं कर रहे कि कैमरे में आके कहते हैं कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, कहते हैं नहीं इसका जवाब वो देंगे। अच्छा, पहले तो खुद ही तुम लोग जवाब देके तो देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल करार देते थे, आज सिर्फ डरे हुए हैं
کہ جس نے ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا, تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے. مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے. دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی, بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. پاگل شخص, سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے. اچھا پاگل لفظ نہیں بولتے تھے, مجنون بھی نہیں بولتے, مجذوب اور کلندر, پاگل لفظ ہی نہیں بولتے. اچھا پاگل سے اگر قلم اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلمات کفر ہے, اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے. پاگل کی تو پیروی نہیں ہو سکتی. صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, بتاؤ. تیسرا دفاع تھا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ ایک بندے نے, حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی, جس کا ساز و سامان اونٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ ریگستان میں گم گیا. جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, الٹ زبان سے نکل گیا. ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں, زبان لڑکھڑائی. یہاں تو اسے معرفت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے 3 دفعات ہیں. اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا, وہ بھی میں نے ان کا الٹ دیا. اور یہ حدیث کی کتابیں بھی تو جھوٹیاں حدیثیں ہیں, ساڑھے بزرگوں نہیں نکل آئی ہیں. اللہ دے بندے ہو, حدیث کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے مینشن کیے محدثین نے, اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے عقائد کھڑے ہوئے ہیں, الٹا ان کا دفاع کیا ہوا ہے. نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے, انجینئر صاحب خود بھی مان گئے ہیں. بالکل بخاری شریف میں موجود تھا اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے, بالکل قرآن میں فٹ اینڈ بیٹھتی ہے. ان کو ذخیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وہی میں ڈیلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منسوب کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو منہ بولی ماں تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا, اللہ نے حفاظت کی. بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نہ آتے نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی, نبی علیہ السلام کو وہ بچانے کے لیے سامنے آگے حضرت جبرائیل. کیونکہ جب وہی میں ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو. یعنی یہ اللہ کی محبت میں, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا, برہان کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بھی بچا لیا. بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ, کوئی گستاخی نہیں ہے اور کٹ جڑا ہے کوئی. ٹوٹل انہوں کا دین مانے ایسی. جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے نا سامنے لا کے ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے. اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں, مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا. انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے, جس طرح آج پہنچے ہیں ہاں شف کے پاس. مزہ آیا ہے جناب, اور ساروں کے چہرے لٹکے ہوئے, اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا, پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے. ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. آپ لوگ ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی. تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا, میں نے تو نہیں کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے, اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا. لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, پھر میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے. جواب دینا ہے میں نے, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے, لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی. وہ تو آخرت میں پہنچ گیا, اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا, جو باپا جانی کہتا ہے دیکھو تو دماغ کتنے گیا. وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, اور لو تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی.
इतनी उल्टी सोच कि जो मुझे कत्ल करेगा मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा कि इसने मुझे शहादत के रुतबे पे फाइज किया है। वाह सुभान अल्लाह, ये इनकी समझदारी है। यकीन करें आज मुझे जितना गुस्सा था ना मैंने उतना निकाला नहीं है, लेकिन आज के बाद काउंट डाउन तुम्हारा शुरू हो गया है, ये ज़हन में रखना। जो भी अब बाबों के दिफा के लिए आएगा ना तो मैं बिल्कुल अब सीधा हूं, सीधी सी बात है। एक गरीब वो तो बदतमीज अल्लाह के बंदों बजाय तौबा करते हैं, डिफेंसिव मोड में जाते हैं, हर चौथे दिन एक कोई बंदा लॉन्च करके मेरे बारे में स्टेटमेंट दिलवाते हो। बिल्कुल बोलोगे, जितनी दफा बोलोगे मैं उतनी दफा बोलूंगा, हर दफा तो लम्बा पाऊंगा बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी गौसे पाक मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनवानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, उन्होंने मार गई ये मदद थोड़ी। जाओ ना गौसे पाक को। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 चक्का, चंदा भी गौसे पाक को मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी गौसे पाक को मंगो ना। तो मेरे भाई तहफ्फुज़ फराम हो रहा है, कुरान और सुन्नत की दावत की बरकत से तहफ्फुज़ फराम हो रहा है अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ नहीं बैठते, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीब को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीब साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीब ये रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूं कि ये बताओ ये पीर मेलनी ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया है। अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गया है तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया है, आस्ताना गोल्डिया ने। अच्छा तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं इनकी कमाई हलाल है या हराम। फिर गोल्ड जानते मुफ्ती मुनीब जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि जी पीर मेलजिया साहब निकले थे गुलाम का दियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा। उस जमाने में पीर मेलजिया साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है, तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है। तो ठीक है दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी ये धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। तहफ्फुज़ फराम किया हुआ है, पाकिस्तान के आइन में कादियानी तबलीग नहीं कर सकते। अगर यहां बैठ के मैं तबलीग कर रहा हूं तो यह सबसे बड़ा सबूत है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, चिश्ती दज्जाल, शिबली दज्जाल, थानवी दज्जाल बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कहते हो ये मार्फत की बात है, उनके खिलाफ खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहा हूं। तुम सिर्फ एंटी कादियानी बोल रहे हो, खत्म नबूवत पे बोल ही नहीं सकते, उसके कॉपीराइट्स मेरे पास है। जिस दिन तुमने खत्म नबूवत पे बात की ना तो तुम अपने धरने लाहौर से नहीं निकल सकते लेके। सबसे पहले तुम्हें लाहौर में ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन, शबीर ब्रदर्स, ये सारे मकतबे बंद करवाने पड़ेंगे जिधर से ये गुस्ताखाना किताबें छप रही हैं। इस्लामाबाद का धरना लेने के लिए आते हो, लाहौर में ही बंद करवाओ ना, ये कभी भी नहीं कर सकते, उन्हीं से चंदे लेके खाते हैं। तो जब जब ये सामने आओगे तब तब मैं अल्लाह के फजल से एक एक चीज खोल के बयान करूंगा। बिल्कुल मेरी तरफ से अब कोई नरमी वाला रवैया ना रखना है, बिल्कुल ये नरमी वाला रवैया उस वक्त तक था जब ये दावत हक कमजोर थी। बिल्कुल हजरत उमर ने जिस तरह कहा था ना कि उस वक्त मुसलमान कमजोर थे तो नबी इस्लाम ने तुम्हें ये जमीनें भी दी थी, अब तुमसे वापस लेंगे अगर इनके ऊपर तुम काश्तकारी नहीं करोगे, ये मुसलमानों की अवाम का माल है। तो मौलवियों आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने कोई नरम रवैया तुम्हारे बारे में इख्तियार करना है, क्योंकि मैंने ये 15-16 साल जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से तुम लोगों को हाफिज़ाउल्लाह कह के, तुम्हारे बड़ों को एहतराम के साथ मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, आला हजरत बरेलवी साहब कह के पुकारा है, उसका एंड रिजल्ट ये है कि तुम लोग मेरे बारे में इस किस्म के बकवास याद करते हो। तो बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कोई किसी बुजुर्ग का लिहाज नहीं करूंगा और ना मैं किसी बुजुर्ग का दिफा करने के लिए यहां बैठा हूं। तुम्हारे बाप है, तुम खुद दिफा करो इनकी तरफ से, मैंने कोई दिफा नहीं करना। जिंदा है मुर्दा है अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ कहलवाया तो अल्लाह की जहन्नमों में होंगे, और अगर नहीं कहलवाया तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, बशर्ते कि इनके अकीदे भी सही हुए। सिर्फ ना कहलवाने से नहीं, हम तो इनके अकीदे भी ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड है, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कश्फ मजहूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कश्फ मजहूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब वो मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दाता साहब ने नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चक क्यों मारा गुस्ताखी वाला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहेगा यार ये तो बात तो सही है, वो मीम देखा बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह जब निकलता है तो फिर सारी इनकी इमाम भी कहती बात तो सही है। हाँ। वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है।
लोग कहते हैं ये थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो उनकी तालीम, सरकार सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी की हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि जी ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा? तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़े ही नहीं हुआ था, न सो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना इबारतें। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। मेरे पास तो आसानी से चीजें मौजूद थी। अली अजमेरी साहब खुद कहते हैं कशफुल माजूब में मेरा मसला फंस गया, मैंने जाके बाजीद बुस्तामी की कब्र पे रात गुजारी, वहां पे मुराकबा किया। अब ये सब फ्रॉड है, लेकिन अगर मैं ये बयान करूं तो वो कहेंगे नहीं जी अगर ये फ्रॉड था तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने मुराकबा क्यों किया था इधर आगे लाहौर? आगे से जवाब में वो ये कहेंगे। मैं इनको हदीसें सुनाऊंगा मुस्लिम शरीफ की कि कब्रों पे इमारतें मत बनाओ, कब्रों को पक्का ना करो, इन पर मत बैठो, ना डायरेक्ट बैठो ना मुजावर बन के। ये कहेंगे जी ये हदीसें इन बुजुर्गों को नहीं पता थी, तो हदीस के मुकाबले में बुजुर्गों के अकवाल ले आएंगे। लेकिन सरकार गुस्ताखी एक ऐसी चीज है कि जिसके मुकाबले में कोई चीज नहीं आ सकती। अब आपको पता चला इतनी छोटी सी पुड़िया लिख के उसामुल अरमैन अहमद बरेलवी ने पूरे देवबंद मदरसे को किस तरह गुस्ताखी की नेज़े की नोक पे उठाया हुआ। हजारों उलमा फेल हो गए एक अहमद बरेलवी को काबू करने में। क्यों? उसने चीज ही ऐसी पकड़ ली थी। 5 भारतें उसने पकड़ी, उनमें से भी 4 देवबंदियों की हैं, एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की है। 4 भारतें पकड़ के पूरी देवबंदियत उलट दी एक बंदे ने। तो ये आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील है। आला हजरत को क्या पता था कि मनु भी किसी ने मुंह पा लेना है, उसी तरीके से जिस तरह मैं बाकी ने मुंह पाया। तो ये हमारी आप मजबूरी समझें। लिहाजा अगर किसी के दिमाग में है ना कि इन सूफिया की तालीमात में सही बातें भी हैं, सरकार जिनको आप सही समझते हैं वो भी कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हैं। शुरू से लेकर आखिर तक मैं एक एक सफे का पोस्टमार्टम कर सकता हूं कि क्या कुछ लिखा हुआ है इनकी किताबों के अंदर। लेकिन उनके मुकाबले पे कुरान और सुन्नत से जब मैं दलाइल रखूंगा लोग नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे नहीं ये बात तो ठीक है लेकिन उन्होंने फिर क्यों लिखी। लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, इसमें कोई नहीं कह सकता कि यह कोई मार्फत की बात होगी जो उन्होंने लिखी। आगे कहते हैं जी अगर ये हमारे बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए होते तो आज ये अमली तवातुर से आगे चल रहे होते कलमे। जी अमली तवातुर से चल रहे हैं ना, तभी किताबों में छापे हुए हैं ना, तभी तो 2009 में मुनाजरे में दिफा किया हुआ है, चल रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते तो नहीं है। वो तो जनाब कादियानी भी नहीं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के नाम का कलमा पढ़ते जाए, वो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ते हैं। आखिरी नबी नबी इस्लाम को ही कहते हैं, वो तो उसको उम्मती नबी कहते हैं। आप जाए उनसे पूछें कि भी आखिरी किताब कौन सी है, वो कहेंगे कुरान। उनसे पूछें मुसलमानों के 4 खलीफा कौन से हैं, वो कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ज़ाहिर सुन्नियों में से एक फिरका निकला था ना, कादियानी शिया का फिरका नहीं था, सुन्नियों का था, हनफी, आज तक हनफी है। तो बातें तो सारी वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया उसकी वजह से हमने उन्हें काफिर डिक्लेयर किया। तो कादियानी अगर खिलवाड़ करें तो वो काफिर हैं। तुम और तुम्हारे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं। उल्टा जो तुम्हारी गलती हाईलाइट करे बजाय उसे एक्सेप्ट करने के उसके ऊपर चढ़ दौड़ो और उसके ऊपर फतवे लगाओ कि इससे तहफ्फुज फराहम किया हुआ है और ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता, हमारे उलमा मुनाजरे के लिए जाते हैं, ये मुनाजरा नहीं करता। वो कौन आया तुम्हारे बड़ों में से बताओ? तुम्हारे बड़े तो अपना कीदा छोड़ गए मेरी वजह से। मुफ्ती मुनीब साहब को फतवा लिखना पड़ गया। मुफ्ती मुनीब इनकी सुलह कराने हर जगह पहुंचे होते हैं ना, जेल माना को मसला था, चले ऑनलाइन आ जाते, उन्हें पता सही बातें कर रहे हैं। उल्टा जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी यहां से होकर गया, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ वीडियो बना दी कि ये कौन सा मुनाजरा है कि अकेला जाए बंदा और अकेला भाग के तो फतह याब होके तो वापस आ जाए। वो वीडियो देखिए और चेक करो कि मुफ्ती साहब ने हुई अंदर खाने। अगली गल आप समझो क्यों नहीं बोल रहे। उस टाइम तो सारे बड़े निकल आए थे ना। अगर नाउज़ बिल्लाह तुम मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की जगह मानते हो, वैसे तो वो बहुत छोटा था, मैं तो उसको भी और तुम्हारे बड़ों को भी बहुत छोटा समझता हूं। मैं समझता हूं ये जो अल्लाह के फजल से अरबी वाला फितना तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुआ है आजमाइश की शक्ल में, कुरान और सुन्नत की दावत, ये तो इसकी हीट तुम्हारी आने वाली नस्लों ने भी महसूस करनी है और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्गों ने अपनी कब्रों के अंदर महसूस करनी है। अल्लाह के फजल से मैंने आप लोगों को कई साल पहले कहा था इस दावत को आम दावत नहीं समझनी कि एक बंदा आया और वो चला गया। नहीं, ये बंदा आया है, बात बता के, हक बता के लोगों को जा रहा है। अब कोई और रेमेडी इसकी मुमकिन नहीं है जब तक कि तुम कुरान, बुखारी, मुस्लिम, कोई यहूद नसारा की किताबें नहीं कह देते ना, इसके बगैर तुम्हारा कोई चारा नहीं है। अगर मुसलमान बन के रहना है तो इन किताबों को मानना होगा और फिर वो मुसलमान तुम्हें वो वाला बनना पड़ेगा जो किताब और सुन्नत वाला है। बाबों वाला दीन अब तुम्हारा नहीं चलना। तो आप लोग खुद क्यों नहीं सोचते कि पीर मेरे अली शाह साहब निकले थे तो आज क्या मुफ्ती मुनीब या मुफ्ती तकी उस्मानी या साजिद मीर इनको नहीं निकलना चाहिए? इतना बड़ा फितना आ गया, हर मस्जिद में मेरे खिलाफ जुमे पढ़ा रहे हैं, जो मौलवी उठता है वो रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा करता है। बड़े कितने मार गए हैं, रिटर्न में कोई फतवा दे दें, बाई नेम मुझे कभी मेंशन करें। पहले तो इनको यह था ना कि जी वो हमारे बड़ों ने नाम दिया तो इंजीनियर साहब मशहूर हो रहे हैं, उन तो मसला खत्म हो गया ना, उन तो मशहूरी मेरे नाम की जरूरत है। ठीक है, ये बात तुम 15 साल पहले कर सकते थे। अब क्या मसला है आज की डेट में 23 जून 2024 को? क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं इसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल, इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा।
मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की इबारतें, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीय हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीय हुक्म भी बयान करो। मुझे बताएं, ये शरीय हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब कार पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बन, हाँ जरा तू बन जाना, मैं तेरे बाबे आने का, तू सब तो बड़ा जलील है। हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कड़छा बाहर, तू क्या है ये चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक एक किताब का नाम है, पीर मेलिया साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और मौलवियों ने भी नाल है जिन्होंने मुनाजरे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नहज पे पहुंचा दिया है कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में, क्लियर कट। ठीक है, तहफ्फुज फराम किया हुआ है, तहफ्फुज तो तुम लोगों को फराम है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम मुर्तद और काफिर कहते रहे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम गुस्ताखे रसूल कहते रहे, पूरा फिरका इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि बाकी सारे गुस्ताखे रसूल हैं। आज तुम्हारे बुजुर्गों का काम जो डाला हुआ मैंने निकाल के बाहर तुम्हारे सामने रखा है, तो आज तुम लोगों को जो है वो इसकी हिट फील होना शुरू हो गई है। सारी पुरानी चीजों के ऊपर माफिया मांगो तुम, अदरवाइज ये भुगतोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी अगर हुई तो। वैसे तो होने वाली नस्लें चेंज हो गई हैं, तुम्हारे बुजुर्ग सारे फेल हो गए। ये तुम्हारे साथ होना था 1200 साल में, जो तुमने इज्जत वेल की थी ना 12 सालों के अंदर, एक नारे ने इनके बाबों का सारा फिरका उखाड़ के रख दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। अच्छा मेरे भाइयों, अब जो रियल टाइम पर्चियां आई हैं मैं